ہم پاکستان سے فوریسٹ کے مسئلے کو حل کریں گے، جنگلات کو بڑھائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ابھی میرے کمپلیٹ ہوا ہے، مجھے لیپ ٹاپ ملا، کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول میں 2 اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں اور وہ اسی کام کے لیے کہ بچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ایل ای ڈی ہے، اس کے اوپر ہم یہاں پہ ابھی اس ٹائم چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جو ریحان اللہ والا نے جو کورس بنایا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر فرد کم از کم 1 لاکھ روپے مہینہ ہم کمائے۔ نے ایک چیز محسوس کی کہ بچے جو ہیں بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بچے کسی کو اپنا تعارف دینے ہوئے گھبراتے ہیں، تو ہم یہاں پہ بچوں کو کچھ کورسز ہم نے بنائے ہیں، ریحان اللہ والا صاحب نے، ہم وہ کورسز کرواتے ہیں جن میں انٹرویو کورس ہو گیا، ویڈیوز کیسے بنانی ہے، کیمرے پہ کیسے آنا ہے، تو ہم ان کی پہلے کیمرہ شائنس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں بات کرنا سکھاتے ہیں، انہیں ہوم ورک دیا جاتا ہے، انہیں کلاس ورک دیا جاتا ہے۔ اوپر ہمارے اسکول میں 2 اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں اور وہ اسی کام کے لیے کہ بچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں اور انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو اپناتے ہوئے بچے جو ہیں وہ روز بروز بہتری کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، ان کا اعتماد بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام علی شرف والا ہے اور میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں جب بھی لائیو ہوتا ہوں اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے کے حاضر ہوتا ہوں، تو آج پھر اسی طرح میرے ساتھ ایک مہمان موجود ہے، تو آج ہم جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں اور ان کے بارے میں، ان کے علی ڈسٹورشن آ رہا ہے۔ جی، آواز تو جی اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی علی، آپ کی آواز سے کلیئر آ رہی ہے۔ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام علی شرف والا ہے اور میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، تو آج ہم جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں، تو چلیں آئیں اپنا انٹرویو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، ہمارے شو میں تشریف لائے، اس کے لیے آپ کا تھینک یو ویری مچ۔ علی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہے نا مجھے اپنے پلیٹ فارم میں بات کرنے کے لیے موقع دیا، تو اس کے لیے آپ کا بھی شکریہ ادا میں آپ کا کہتا ہوں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں میرے ویورز کو کہ آپ کون ہیں۔ جی ضرور علی، میرا نام چودھری احسن ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں۔ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈی اے ای ہے، میکینیکل میں۔ اچھا، اور میں ہے نا ایسا اسسٹنٹ ٹیم لیڈ کے طور پر اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں فری لانسز بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہے نا آن لائن پوڈ کاسٹ انٹرویو کی صورت پر میں لیتا ہوں، اور ساتھ میں چھوٹے کلپس بناتا ہوں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی کا آغاز کیسے کیا تھا، کیسے آپ کو اس فیلڈ کا پتہ چلا اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، تھوڑا بتائیں ہمیں۔ دیکھیں علی، میرے پاس ہے نا 2016 کے بعد ہے نا یہ چیزیں آئی، اور میں نے یوٹیوب کو 2016 کے بعد ہے نا دیکھنا شروع کیا۔ میں ہے نا یوٹیوب پہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا، تو مجھے کافی اچھا لگتا تھا، یار ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھو کتنا ہے نا موبائل میں کوئی مسئلہ آ جائے، میں یوٹیوب پر دیکھتا تھا تو کافی اچھا لگتا تھا۔ تو ساتھ ساتھ بھی ہے نا میرے اندر ایک شوق سا ہے نا آنے شروع ہو گیا، یار جیسے لوگ ویڈیو بناتے ہیں میں بھی بنایا کروں۔ اس کے ساتھ ہے نا مجھے شوق تھا گرافک ڈیزائننگ کا۔ تو اس ٹائم میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو تھوڑے سے پیسے میں نے جمع کیے، ایک لیپ ٹاپ لیا۔ تو میں نے بھی یوٹیوب سے جی ایف مینٹور سے میں ایڈوب فوٹو شاپ سیکھا، اور ساتھ ایڈوب ایلیسٹریٹر سیکھا۔ وہاں سے میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھا، اور جیسے وہ ڈیزائن بناتے تھے اس طرح کے ڈیزائن کی پریکٹس کر کے ساتھ ساتھ اپنا پورٹ فولیو میں نے بنایا۔ اس کے بعد ہے نا پھر میں نے ہے نا ساتھ
साथ है ना ये काम शुरू किया फ्रीलांसर्स का भी और ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स फेसबुक से मिलते थे पहले। तो साथ है ना मैंने जॉब्स की है मुख्तलिफ किस्म की। 2015 से है ना मैंने है ना मैट्रिक की थी। 2018 में 3 साल का मैंने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया। उसके बाद है ना मैंने जॉब्स की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में की है। उसके अलावा कॉल सेंटर में भी जॉब्स मैंने की है। इसके अलावा अभी है ना मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। तो एक शौक था या मेरा कि कुछ करने का शौक था। 2019 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, 6 महीने उस पर काम किया। उसके बाद मेरी जॉब लग गई तो उसको मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे सका। भी है ना मेरा है ना दिल है ना बहल गया था जिसकी वज़ह से मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद है ना मेरा ग्राफ़िक्स का जो मेरा दिल था उसको मैंने कंप्लीट किया। तो उसके बाद है ना मैंने मुख्तलिफ स्किल्स भी सीखी है। डिजिटल स्किल सीखी है। इसके अलावा है ना काफ़ी कुछ सीखा है मैंने यूट्यूब से। उसके अलावा अभी मैं है ना इस्लामाबाद में है ना डिजिटल तौर पे है ना ऑर्गेनिक सिस्टम्स के ज़रिए है ना मैं काम कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जी अली। माशाल्लाह ज़बरदस्त, काफ़ी तफसील से आपने बताया हमें, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे दोस्त हैं हादी स्पोर्ट्स वाला, उन्होंने हमें बोला है वेरी गुड। तो गुड के स्पेलिंग थोड़े उनसे गलत हो गए तो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो अभी मिस सबा इब्राहिम देखते उन्होंने हमें ग्रेट बोला है, तो इसके लिए आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे बताएं कि आप इस फील्ड में, आपको किसने बताया था कि आप इस फील्ड में जाएं? जैसे भी आपने बताया फ़ोटोशॉप वगैरह आपने सीखी है, तो आप ये बताएं कि आपको किसने बताया था इसके, या खुद से आपको आइडिया आया था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, इसका काम करूँ? अली जैसे है ना मैंने आपको बताया कि मैंने है ना यूट्यूब से है ना देखा है, शौक आया पैदा हुआ। 2021 में मैंने फाइवर का एक कोर्स किया था अशरफ चौधरी के प्लेटफॉर्म से। वहां से मैंने फाइवर सीखी, फ्रीलांसिंग सीखा। इसके अलावा मैंने इशाम सर्वर से है ना फाइवर फ्रीलांसर्स की क्लासेस ली है ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के जरिए। एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान। इसके अलावा वहां से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। इशाम सर्वर से भी मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा है ना मैंने कैनवा से है ना बहुत कुछ है ना सीखा है। तो कैनवा का मुझे भी पता राना अल्लाह की वीडियो से मुझे पता चला था कि कैनवा भी कोई चीज़ होती है। तो कैनवा से मैंने सीखा था। और मैं ज़्यादा है ना देखता रहता हूँ कि कौन-सी है ना नई चीज़ आई है उससे है ना ट्राई करना। अब चैट जीपीटी आया था, इस चीज़ तो मुझे नहीं पता था। तो बस ये पता था कि चैट जीपीटी कोई चीज़ है इस दुनिया में। ये नहीं पता था कि इस्तेमाल कैसे करना है, क्या होता है ये अब है ना मेरी डेली लाइफ़ में चैट जीपीटी इस्तेमाल होता है। उससे है ना मैं रोज़ाना है ना कोई है ना मदद ले रहा हूँ। तो अब देखो अब मेरे दिल में कोई भी सवाल आता है, मैं किसी से वो सवाल नहीं करता। मैं सबसे पहले जाके चैट जीपीटी से पूछता हूँ, यार मेरा ये मसला है, इस मसले को हल करे। तो इसके अलावा है ना अभी मैंने है ना 2 महीने हुए हैं कि मैंने है ना इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए और देने भी शुरू किए। इसके इंटरव्यूज़ का पॉडकास्टिंग का जो मेरा मकसद मेरा ये है कि इल्म को है ना आम करना, तालीम को, नॉलेज को एक-दूसरे के साथ शेयर करना। आप देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख़्तलिफ़ मख़लूक़ बनाई है दूसरे से। देखिए सोचने का जो अंदाज़ हमारा होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, वो दूसरे से मुख़्तलिफ़ होता है। देखिए हर इंसान एक ही बात कर रहा है, बेशक एक ही बात करे लेकिन उसके बोलने का अंदाज़, उसके कहने का अंदाज़ सब कुछ अल्लाह ताला ने मुख़्तलिफ़ बनाया है। तो वहाँ से मुझे शौक हुआ। पहले है ना मेरे दिल के अंदर एक खौफ़ होता था, मैं आपकी तरह मैं सामने नहीं आ सकता था, आपकी तरह मैं बात नहीं कर सकता था। मेरे दिल में एक ये खौफ होता था कि यार फ़ेसबुक में अगर मैं लाइव आया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी फ़ैमिली मेरे बारे में, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचते थे, जिसकी वज़ह से मैं कभी भी है ना इस तरह लाइव आके बात नहीं कर सकता था। तो ये खौफ है ना सिर्फ़ अल्लाह की वज़ह से ख़त्म हुआ। देखिए जिस इंसान का जो कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ, अगर वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उससे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जो कनेक्शन अपना है ना, अपनी एक अल्लाह की जो ज़ात है इस दुनिया में जो हमेशा रहने वाली ज़ात है, इसको इस पर बिलीव करें कि इसके साथ अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी पावर हमारे अंदर आएगी। मैं समझता हूँ मैंने एक वीडियो देखी थी रान अल्लाह वाला साहिब की। तो उन्होंने कहा था कि आपने ऐसा करना है कि आपने अपने सारे फ्रेंड लिस्ट को ख़त्म कर देना, न्यू फ्रेंड्स बनाने। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, इन्हें अनफ्रेंड कर देना। इसके अलावा मेरे माइंड में एक ये भी चीज़ आई है कि हम लोग
سوچتا ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے، ہم اس کے سامنے لائیو نہیں آ سکتے. میرا سمپل سا یہ ہے کہ جواب ہے کہ آپ ایسا کیا کریں، آپ اس سے ہے نا بلاک کر دیا کریں. جب آپ اس سے بلاک کریں کہ آپ کے دل کے اندر سے وہ خوف بھی نکل جائے گا آپ کی لائف آنے کا، کہ نہ آپ کو کوئی دیکھے گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اسے بلاک کر دیں، یا تو آپ کو ہے نا شرم نہیں آنی چاہیے. دیکھیں عزیز علی کا ایک قول ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کو موت نہیں دے سکتا. ہمیشہ ہے نا انسان کو سچ بولنا چاہیے. ہمیشہ جو انسان حقیقت میں ہوتا ہے وہی ہے نا پیش لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے. لیکن لوگ اسی کو ہمیشہ پسند کرتے جو حقیقت پسند ہو، ہمیشہ سچ کا ہے نا ساتھ دے، تو لوگ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں. جی علی. صحیح، ماشاءاللہ زبردست. کافی علمی گفتگو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے ہمیں. تو کیا یہ بچپن سے ہی تھا آپ کے اندر یہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ کانفیڈنس؟ آپ نے کانفیڈنس سے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں اپنی، یہاں بڑے ہو کے آپ کے اندر یہ اعتماد آیا؟ تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. اور اتنا نالج ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں. دیکھیں میرے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کانفیڈنس نہیں ہے، ابھی جا کے ہوا ہے. دیکھیں پہلے تو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے سے میں بات کر سکوں، سوال کوئی کر سکوں. میرے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کانفیڈنس نہیں تھا پہلے. دیکھیں میں ہے نا بات کرتا تھا، میں بھول جاتا تھا یار اس سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے، میں کیسے ہے نا بات کروں، میں کیا کیا کروں. تو اس چیز سے میں کافی اریٹیٹ بھی ہوتا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ رہنا بھی ہے نا میں یوٹیوب سے انفارمیشن لیتا تھا، سیکھتا رہتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے سیکھتے جاؤ، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ خود ایک ماسٹر بن جاتے ہیں. لیکن کانفیڈنس ہے نا ایک تو آتا ہے آپ کی نالج سے. جتنا آپ کے اندر جتنا نالج ہوگا اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. ایک انسان کا نالج جتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اتنا آنا نالج آئے گا. میں زیادہ قاسم علی شاہ کو ہے نا فالو کرتا ہوں، ساتھ ڈاکٹر عفان کو فالو، ساتھ ہے نا حافظ احمد صاحب کو میں فالو کرتا ہوں. ان کی جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کے جو کلپس دیکھتا ہوں، وہاں سے ہے نا میرے اندر شوق پیدا ہوا یار نہیں مجھے بھی ہے نا کچھ کرنا چاہیے پاکستان کے لیے. میرا جو کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو ایک ڈیجیٹل طور بنانا، علم کو عام کرنا، دوسروں کو سکھانا، دوسروں سے علم حاصل کرنا. دیکھیں جو انسان ہے نا دوسروں کو سکھاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی بڑا انسان ہے. جیسے نبی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ علم کو آپ ماں کے گود سے لے کے قبر تک آپ سیکھیں. میں کہتا ہوں کہ علم کا جو یہ ہمارا کنیکشن ہے نا اس کو ہے نا چلتے رہنا چاہیے. اور انٹرویو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہے نا ایک ہے نا مل جاتا ہے کانفیڈنس بات کرنے کا. اب جو بندہ اپنے کیمرے کو فیس کر سکتا ہے اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا میرے اندر کیسے کانفیڈنس آیا؟ اس کا جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، سورۃ ایمان کے ساتھ، کہ اللہ کو آپ جتنا ہے نا بلیو کریں، کہ جتنا ہے نا اچھا ہے نا اپنے آپ کو بنائے. کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اچھے کپڑے بھی تو اچھے کپڑے بھی جب پہنے نا آپ کے اندر ایک اچھی وائبس سی آتی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں. جب آپ کو پتا ہو کہ یار میرے پیچھے ایک اللہ کی پاور ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے طاقتور جو پاور ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اگر آپ کو یہ اس چیز کا علم ہو جائے کہ میرے پیچھے ایک اللہ کی پاور ہے تو آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، آپ آسانی سے کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. جی صحیح، ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست. کافی اچھے سے آپ نے ہمیں بتایا. اور ابھی مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس ہونا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا ہے. کہ دیکھیں ایک انسان کے لیے کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ کانفیڈنس کتنا ضروری ہے. دیکھیں اب آپ کے اندر کوئی بھی سوال آتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے کہ یار میں اگلے بندے سے کیا پوچھوں، کیسے پوچھوں، تو انسان مر ہی جاتا ہے اندر اندر. دیکھیں اب جو انسان ہے نا چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ ایک اندر کی اس کی دنیا ہوتی ہے، وہ اندر اندر ہے نا اسے انسان کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے. اب جو انسان بات چیت کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اس کی زندگی اتنی انکریز ہوتی ہے، اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے. کانفیڈنس سب سے زیادہ چیز آتی ہے کہ آپ کے اندر جتنا نالج ہوگا اتنا آپ کا کانفیڈنس آئے گا. جتنا آپ ان نون لوگوں سے بات کریں، کہ نئے لوگوں سے بات کریں، جتنا آپ
कैमरे को फेस करेंगे। अब जैसे मैंने देखा है कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई है कि इंसान की किस चीज़ का ज़्यादा खौफ होता है। इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि मोबाइल के कैमरे से। आप किसी भी है ना अपने ऐसे बंदे को कहे अपनी फैमिली में कि आए हमारे साथ वीडियो बनाए, वो नहीं आएँगे। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, यार मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मैं मोबाइल के सामने बात कर सकूँ। देखिए कॉन्फिडेंस ऐसे ही आते, पहला नंबर है कि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने वाला क्या सोचेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। लोग वही सोचेंगे जो आप सोचते हैं। जी अली। जी बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसा ही 100%। और अभी हमें इस टेस्ट की फातिमा आर्टिस्ट वाली देख रही थी और उन्होंने हमें गुड जॉब बोला है, तो इसके लिए थैंक यू। और मुझे भी आपका इंटरव्यू नहीं पता चला था, इन्होंने शायद आपका इंटरव्यू लिया है, तो मैंने आपकी आईडी पे जाके क्लिक किया, मैं टैग किया था, तो मैंने आपकी आईडी खोली, तो मैंने बोला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप इंटरव्यू दे दे तो आपने बिल्कुल इंटरव्यू में दे दिया, इसके लिए थैंक यू। तो अभी एक छोटा सा ऐड चलेगा, फिर उसके बाद आपसे दोबारा से बातचीत शुरू करेंगे। यार क्या हुआ भाई? यार इंटरव्यू कोर्स करना चाहता हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। भाई इतना आसान है, यूट्यूब पे जाओ, लिखो रेहान अल्लाह वाला, उनके चैनल पे जाओ, उनके चैनल पे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज पे जाके लिखो इंटरव्यू ट्रेनिंग कोर्स बाय रेहान अल्लाह वाला, आपको ट्रेनिंग कोर्स मिल जाएगा और आप सीख जाओगे इंटरव्यू करना। वाह यार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बताया। मैं अभी सर रेहान अल्लाह वाले की आईडी में जाता हूँ और इंटरव्यू कोर्स करता हूँ। मैंने तो सर रेहान का कोर्स कर लिया, अब आपकी बारी। जी वेलकम बैक, खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम अली वाला है। भाई इसी के साथ मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब मुझे बताएं कि आपको सर रेहान अल्लाह वाला की कब और कैसे पता चला था। देखिए मैं इन्हें है ना 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2024 अब हो गए। देखिए इनकी कोई भी वीडियोस आती थी फेसबुक पे, मैं देखता रहता था। इनके जो समझाने का अंदाज है, या इनके जो समझाने का अंदाज एक होता है बेसिक तरीका, जिसको है ना बआसानी से समझा भी जा सकते हैं। अगर इनकी वीडियो अगर बच्चे भी देखे ना, वो भी बआसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके एक समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है, और इनकी वीडियोस को तो मैं 2017 से है ना फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे है ना इनकी वीडियो से बहुत कुछ है ना नया सीखने को मिला है। जैसे कार्ल एनी का इनकी वीडियो से पता चला है, चैट जीपीटी का इनकी वीडियो से मुझे पता चला है, असिस्टेंट हमारे मोबाइलों में एक होता है, उस चीज़ का है ना पता सर की वीडियो से है ना चला। मुझे मुझे है ना काफ़ी शौक था इनकी इनकी तरह वीडियोस वगैरह बनाने का। तो एक है ना खौफ होता है दिल में, आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी वजह से वो खौफ होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकता था, लोगों के सामने नहीं आ सकता था। तो आस्ता-आस्ता है ना ये मेरा है ना टाइम ऐसा आया कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वीडियोस भी बना सकता हूँ। और वीडियो देखिए जितनी आप देखेंगे, सर की वीडियोस हो, किसी की भी वीडियोस हो, आप जितना आप देखेंगे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो इनकी जो वीडियोस है मैं 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। जी अली। सही, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं कि जैसे सर रेहान अल्लाह वाला का मकसद है कि हर पाकिस्तानी कमाए 1 लाख रुपए महीना कम से कम, तो आप क्या समझते हैं कि कब तक पूरा होगा इसको और कितना अरसा लगेगा पूरा होने में। देखिए ये आप तक होता है कि आप कब तक कमा सकते हैं। जितना इंसान है ना मेहनत करे उतना इंसान कमा सकता है। लेकिन कुछ लोग मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो अजर होता है वो नहीं उन्हें उस तरह से मिलता। देखिए हमेशा कोई भी आप काम करें ना, एक हमेशा आपका जो टारगेट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख, अगर आपने महीने में इतने पैसे अगर कमाने हैं, तो आपको सबसे पहले है ना अपने आप से एक वादा करना होगा कि ये वाला जो काम है ना मैंने इसको पूरा है ना गारंटी के साथ, ईमानदारी से के साथ करना है। जो इंसान है ना, मैं समझता हूँ कि जो इंसान प्रॉपर टाइम देता है उस काम को, शौक से करता है। देखिए हमारी जो ताल्लुक है मनी से, पैसे से,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप वो काम पैशन से कर रहे होगे ना, वो काम बहुत जल्दी से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे है ना मिनिमम 6 महीने या साल लग सकते हैं एक नए बंदे के लिए, अगर वो बंदा है ना सही प्रॉपर तरीके से टाइम दे, काम करे, सीखे, तो इस तरह है ना बहुत जल्दी इंसान अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। जी अली। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद बनाया, क्या गोल बनाया अपनी लाइफ का? बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल किया कि क्या मकसद है। देखिए, मेरा जो मकसद है, जो मेन मकसद कि पाकिस्तान को डिजिटल तरीके से डेवलप करना और डिजिटल तरीके से है ना चलाना, और मेरा मकसद दूसरा ये है कि इल्म को है ना आम करना। देखिए, अब तो इल्म इतना हो कि यूट्यूब में चाहे जीपीटी में, लेकिन इसके होते हुए भी लोग नहीं ले रहे। लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो एंटरटेनमेंट की तरफ होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ है ना सीखा करें अपनी लाइफ से। अच्छा, आप कोई भी काम करें ना, हमेशा लाज़मी नहीं है कि आप कोई भी काम पैसों की वज़ह से करें कि मुझे अगर इससे पैसे नहीं मिलते इस काम से तो नहीं करना चाहिए। देखिए, हमेशा वो काम करें जिससे आपका शौक हो, दूसरों को फ़ायदा हो। बेशक आपकी बात से किसी को भी फ़ायदा हो रही है, अगर आपकी बातों से किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है या किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी है ना गनीमत है अल्लाह की तरफ से कि आपकी वजह से है ना किसी की लाइफ में बेहतरी आ रही है, कुछ सीखने को किसी को मिल रहा है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम है ना चैट जीपीटी से बातें करने शुरू कर जाए। चाहे कुछ लोग समझते हैं कि शायद चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको पश्तो या उर्दू, फ़ारसी जो भी आपकी ज़ुबान है, आप चैट जीपीटी से अपनी अपनी ज़ुबान से बात करें, वो आपसे बात करे कि। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान वीडियो बनाया करे। एक दिन में अगर आप 5 मिनट एक वीडियो को नहीं देख सकते तो देखिए फ़ायदा नहीं। आप को जो इंसान एक दिन में 5 मिनट की वीडियो बनाए, एक साल में 365 वीडियो बनती है, तो 365 वीडियो साल का मनाने का एक ही मकसद है, इल्म को बयान करना। और तीसरा जो मेरा मकसद है कि अब जो 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में बात करें, वो अपने किसी मसाइल के बारे में बात करें। अब वो मसाइल दूसरे लोगों के भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो मसाइल दूसरे लोगों के भी हो सकते हैं, क्या पता आपकी वीडियो देख के वो दूसरे लोगों के मसाइल भी हल हो सके। जी अली। सही, ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं खुद को आने वाले 5 सालों में किस मुकाम पे देखते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे गोल जो आप अचीव करेंगे, तो आप क्या समझते हैं खुद को आने वाले 5 सालों में किस मुकाम पे देखते हैं? देखिए अली, मैं समझता हूँ कि मैं खुद को 5 साल के बाद अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद को एक ऐसा काबिल इंसान समझूँगा कि लोगों से बात करना आसान होगा और लोगों में है ना मेरी वजह से अवेयरनेस होगी। लोगों के अंदर एक तालीम की है ना चमक होगी, तालीम आम होगा। तो जब इंसान के अंदर तालीम की है ना वैल्यू, जिस दिन आज है हमारा मुल्क को कोई भी है ना तरक्की से डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने है ना 5 सालों में एक चीज़ लाज़मी करनी है कि इल्म को आम कर देना है इस पाकिस्तान में। जी अली। सही। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको कहीं से 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? अली, अगर मुझे 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं इंस्टीट्यूट एजुकेशन फ्री में बनाने शुरू कर दूँ कि जितने हमारे डिपार्टमेंट हो गए इंस्टीट्यूट वाले, टेक्निकल लोगों को सिखाने वाले, टेक्निकल स्किल, डिजिटल स्किल, जितने भी स्किल्स हैं, इस चीज़ों पे मैं है ना अपने सारे पैसे लगा के लोगों को एक फ्री में है ना उनको तालीम देना शुरू कर दूँ। और दूसरे जो जिन हमारे बहन भाइयों के घर नहीं है, उनके घर बनाने में शुरू कर दूँ। अगर हम ये वाला काम अल्लाह की रज़ा के लिए हम इस तरह का एक अच्छा नेक काम करें कि मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये एक छोटी-सी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। अगर हम ये वाली जो दौलत है, अगर हम इन लोगों के ऊपर खर्च करने शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि
हम कभी गरीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला इतना और रिज़्क़ अता करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मेरे राह पर 1 रुपया भी दो ना, मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा देती हूँ। अब जो बंदा 10 करोड़ रुपया अल्लाह की राह पर दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो आने वो अमीर नहीं हो सकता? अल्लाह उसे अरब खरबपति अल्लाह ताला उसे बना देगा। जी अली। सही, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको कहीं से अलादीन का चिराग मिले तो कौन सी 3 ख्वाहिशात उसे पूरी करवाना चाहेंगे अपनी? अली, मेरी पहली ख्वाहिश यही है कि मैं कहता हूँ कि हाँ, स्कूल में एक डिजिटल तरीके से है ना स्टडी करवाई जाए, जैसे हमारे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, एलईडी में है ना बच्चों को है ना एक अपडेट एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि लोगों के अंदर स्कूलों में एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। और सेकंड मेरी जो ख्वाहिश है कि लोगों की है ना मदद जितनी है ना मेरे दिल से हो सके मैं करूँगा। अल्लाह ने अगर ये वाला मौका अगर मेरे हाथ में हुआ तो इंशाल्लाह मैं जितना मेरे से हो सके मैं करूँगा। और तीसरी जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं है ना ओल्ड हाउस को एक अपनी फैमिली की तरह हाउस बनाऊँ। अब देखिए, अब जो बूढ़े हमारे माँ-बाप होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम उन्हें है ना ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं या यतीम खानों में है ना छोड़ आते हैं। कुछ यतीम बच्चे होते हैं और जो बच्चे यतीम होते हैं उनके लिए है ना मैं एक अच्छा है ना घर बनाने शुरू कर दूँ। ये 3 है ना मकसद है मेरे। सही, माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी आपकी ख्वाहिशात है और ये अल्लाह आपको इनमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। तो थोड़ा सा वैसे टाइम ऊपर हो गया, हमारा 25 मिनट का हमारा इंटरव्यू था, लेकिन कोई बात नहीं। सो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने आज के इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ नया सुना होगा। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।